about lesson number 13, disaster management. Okay. Yesterday I told you what is disaster. Disaster strikes our ears, awaken fears, dread in our mind. Disaster जो है हमारे मन में क्या पैदा करता है? डर पैदा करता है. And disaster also commonly known as calamities happening and catastrophes. Along with disasters, one always thinks of destructions and loss. हम डिजास्टर से क्या क्या हो सकता है? डिजास्टर से लॉस हो सकता है. वी आर अवेयर ऑफ रिस्क ऑफ डिजास्टर. The reason of planning of scarcity and relief operation must be taken into account and detail of circumstances responsible for it. Since this information is very useful for our rescue operations, experts in disaster management have divided disaster into two parts. Let us know its types and their various form in detail. Yesterday हम लोगों ने डिजास्टर के टू टाइप्स देखे थे, नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर कौन से होते हैं? जो सडनली होते हैं, नेचुरली होते हैं. दैट इज अर्थक्वेक, वोल्केनो ड्रॉप, फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड, सुनामी, यूरिकेन. ओके, ये जो है ये नेचुरल डिजास्टर है. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एंड ऑल्सो द मैन मेड डिजास्टर. फर्स्ट बेंच, pay attention. Also we are learning about the man-made disaster. Man-made disaster are yes. हाँ, इसका opposite है like जो हमसे हो जाते हैं, like fire, industrial accidents, bomb blast and riots. Earthquake में हमने क्या पढ़ा था? Generally vibration experience on the earth surface is called earthquake. Earthquake कैसे होता है? अर्थ में वाइब्रेशन फर्स्ट क्रिएट होते हैं. थोड़ा सा वाइब्रेट होता है. सेकंड बेंच, ये दोनों ठोक के बातें कर रहे हैं. यस मैम. डोंट, आई सेड ना, डोंट कंप्लेन. बहुत बातें कर रहे हैं. जनरली वाइब्रेशंस एक्सपीरियंस ऑन द अर्थ. स्टैंड अप होता है. स्टैंड अप. यस, यू आल्सो. तू तो बात कर रहा है. A geological process that take place in the earth crust is responsible for the phenomena. Yesterday we have learned about the earthquake also, and the precaution to be taken during earthquake is sit under the bench in the classroom and not to shout and panic. हमें बेंच के नीचे बैठना है, शाउट नहीं करना है. earthquake हो जाए क्लास में तो. Stay away from electrical poles and wires और electric poles से हमें दूर रहना है earthquake के टाइम. Not to use elevators to get down from tall building. Tall building से उतरना है तो you have to don't use elevator, मतलब लिफ्ट नहीं यूज करना है. Last bench, don't write anything. Just pay attention. Yes ma'am. Know about the authentic news through radio and TV. जो टीवी और रेडियो में ऑथेंटिक न्यूज़ है उसके बारे में थोड़ा हमें अवेयर होना चाहिए. Not to switch on device like gas or electricity in house without surety. हमें गैस और इलेक्ट्रिक जो है हाउस में चीज़ें उसे स्विच ऑन नहीं करना चाहिए. On what time? In the time of earthquake. Next we will going to learn about the cyclone. So first bench. हाँ, first bench stand up. Give him book back. Okay, now tell me, in the time of earthquake, what we have to do? मतलब बेंच के नीचे चले जाने Yes. का और पैनिक नहीं होने का. Yes, correct. और मतलब लिफ्ट का यूज नहीं करने का, सीढ़ियों से जाने का नीचे. Correct. अगर आपकी बिल्डिंग बड़ी मतलब टॉल हो, Correct. And मतलब okay. Yes, last bench. Sit down. Correct. Good. मैम जब भी ऐसा होता है तो हम बेंच के नीचे जाना है. अगर बाजू में कोई इलेक्ट्रिक या ऐसा हो उन सबको स्विच ऑफ कर देना है और भागना नहीं है और लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है. सीढ़ियों से जाना है और आराम से. रेडियो न्यूज़ सुनने का मतलब जो सही है. और जो सही है ना वही न्यूज़ देखनी चाहिए. करेक्ट. और इलेक्ट्रिक का नहीं बोला अपने. इलेक्ट्रिक और वायर्स ये इससे दूर रहना है. स्टे अवे. Okay, get it? You get it about the earthquake. Next one is going to learn about cyclone. This table we have learned that day, so I am not going to repeat again. Second one है cyclone. Cyclone I don't know.
Cyclone means tufan. Enormous atmosphere storms arise from the conditions of the imbalance of the atmospheric air pressures. It is known as hurricane or cyclone. इसे यूरिकन भी बोला जाता है. यूनिकॉर्न. यूरिकन एंड साइक्लोन. और ये कैसे बनते हैं? इनॉर्मस एटमॉस्फेयर स्टॉर्म्स, जो एटमॉस्फेयर में जो तूफान स्टार्ट होता है, अराइज स्टार्ट होता है करेक्ट फ्रॉम द कंडीशंस ऑफ इम्बैलेंस. इम्बैलेंस जो होता है एटमॉस्फेयर में, जब भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है और एयर में प्रेशर आ जाता है, दैट टाइम it known as cyclone. Okay, get it? Where the cyclone streaks, it create heavy destructions and havoc. साइक्लोन से क्या होता है? हेवी डिस्ट्रक्शंस मतलब बहुत भारी नुकसान हो जाता है. एंड हेवी डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट आर एक्सपीरियंस इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मलाबार कोस्ट एंड इन द कोस्ट ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र इन गुजरात. अभी जो साइक्लोन हुआ था उससे कहाँ पे नुकसान हुआ था? गुजरात में भी हुआ था, महाराष्ट्र में ज्यादा नुकसान हुआ था, कच्छ में अभी का बोल रही हूँ, कच्छ का पहले हो चुका था. नाउ वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रिकॉशन. प्रिकॉशन मतलब हमें इसके लिए चुप रहोगे ना? अब क्लास में डू सीट प्रॉपर्ली ना. Precautions to be taken during the cyclone. What is precaution we have to take in the time of cyclone? Precaution का मतलब है हम क्या खबरदारी रखें. ओके, साइक्लोन से बचने के लिए, साइक्लोन हो गया इफ सडन, तो हमें क्या खबरदारी रखनी चाहिए? बिफोर साइक्लोन, ड्यूरिंग साइक्लोन एंड आफ्टर साइक्लोन. Before cyclone, accurately known the detail of cyclone prone area. So during cyclone, we have to close the doors and window on the getting the warning. हमें वार्निंग मिलती है तो न्यूज़ में भी पता जाता है कि आप घर से बाहर ना निकले. That time you have to close the doors and window on the getting the warning. वार्निंग जब भी मिलती है साइक्लोन की, तभी हमें घर पे ही रहना चाहिए, डोर बंद करके. वो भी क्योंकि साइक्लोन क्या होता है, घर में भी आता है, तूफान जब आता है तो डोर के अंदर से आ जाता है, पूरी हवा भी आ जाती है. सो वी हैव टू क्लोज द डोर. आफ्टर साइक्लोन में क्या करना है? डोंट गो आउट इवन थ्रू वेदर सीजन क्लियर एंड द विंड्स आर ऑफ. सडन विंड और रेन मे बी अकर. मतलब हमें साइक्लोन होने के बाद भी, मतलब अभी जैसे गवर्नमेंट बता दे कि अभी साइक्लोन खत्म हो गया, फिर भी आपको बाहर नहीं निकलना है जब तक पूरी श्योरिटी ना मिले, क्योंकि सडन विंड और रेन में अकर मतलब हो सकती है सडन रेन, और साइक्लोन के बाद भी रेन और विंड्स बहुत आती है. तो हाँ, थोड़े लेट टाइम जाना चाहिए हमें. Migrate according to the instructions of the department. If you are in school, don't go out of the classroom. During the cyclone, आप स्कूल में हो, that time you also have to go out from the classroom. आपको क्लासरूम में ही रहना है. Stay away from hanging and open wires. So जो hanging और open wires रहती है उससे हमें दूर रहना चाहिए. Stay away मतलब दूर रहना है. If you are in low lying area near the sea, go to the high lying area. हाँ. If you are in vehicle, park it away from the electric pole. आप vehicle में हो, suddenly cyclone आ जाता है, आप vehicle में बैठे हो, जैसे कि स्कूटर में, बाइक में आप बैठे हो, तो आपको तभी के तभी रुकना है एंड पार्क इट, उसे पार्क करना है एंड अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, आपको वहां से भागने जगह पे चले जाना है. ट्रीज एंड अवे फ्रॉम सी. ट्री के नीचे भी नहीं रहना है कभी. एंड अवे फ्रॉम सी एंड रिमेन इनसाइड द व्हीकल. हमें जो समुद्र के किनारे भी वो टाइम जाना नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड्स रहती है. एंड रिमेन इनसाइड व्हीकल. आपके पास कार और रिक्शा में आप बैठे हो तो उसके अंदर बैठना है. ये किसका चल रहा है? साइक्लोन का. वी आर लर्निंग अबाउट द साइक्लोन. ओके, मतलब तूफान. डोंट बी ऑब्स्टेकल in the relief and rescue work by gathering with curiosity.
कीप फूड, टॉर्च, ड्रिंकिंग वाटर, क्लोथ, रेडियो, नेसेसरी मेडिसिन रेडी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साइक्लोन आपको क्या करना है? बिफोर साइक्लोन, ये बिफोर साइक्लोन का पॉइंट है। आपको उस टाइम पे आपका फूड, टॉर्च, ड्रिंकिंग वाटर। टॉर्च क्यों जरूरी है? बिकॉज साइक्लोन के टाइम में पूरी लाइट ही चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी ऑफ कर देते हैं। बिकॉज ये बहुत सारे जन ने एक्सपीरियंस किया है, साइक्लोन के टाइम में क्या होता है, लाइट ऑफ हो जाती है, पूरे एरिया की लाइट बंद हो जाती है। टूट जाते ना थे। हाँ मैम ऐसे भी नहीं कोई मरे ना, किसी को करंट लगे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करना चाहता है? अब डिस्कस ही मत करो अगर साइक्लोन और साइक्लोन और हर्टक्वेक एक साथ है तो क्या नहीं करूँगा? कभी भी आपको वही प्रिकॉशन लेने हैं। और टॉर्च और वैसे ना हो, ऐसे ऐसे आइडिया मतलब वो बेचारा ऊपर चला जाएगा और कुछ नहीं। Now next day turn off for next point is follow strictly मैं पीछे जाके खड़ा हो जाता हूँ। don't stand there. Follow strictly the instructions of the management of rescue center. हमें क्या करना है? जो रेस्क्यू सेंटर की इंस्ट्रक्शन है, रेस्क्यू मतलब जो हमें छोड़ने के लिए आते हैं तभी, तो वो कोई भी आ सकते हैं। ओके, तो वो टाइम पे हमें उनकी इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब वो जो बोल रहे हैं हमें वो सुनना है, उनके हिसाब से ही चलना है। रिटर्न होम ओनली आफ्टर गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। कितना रोज डिपार्टमेंट से ऑर्डर है ना तभी घर पे जाने का। अब स्ट्रेट खड़े रहो। खड़ा रिटर्न होम ओनली आफ्टर गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। आपको डिपार्टमेंट से जब इंस्ट्रक्शन आएगी तभी आपको घर जाना है। इफ आप ऑफिस में रह रहे हो, स्कूल में रह रहे हो, टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस कनेक्शंस ड्यूरिंग द टाइम। और फिर के टाइम जैसे ही कुछ पॉइंट है सेम, आपको गैस और जो भी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी वो सब बंद करके रखना है, नहीं तो वो टाइम आप जाओगे टीवी देखना है, गेम खेलना है, वो आप नहीं कर सकते। Relieve animals from the home. If they are released, they can save themselves. जो एनिमल्स होते हैं, कोई जो एनिमल्स पालते हैं, हाँ, अपने मदद से वो खुद चले जाए, क्योंकि वो टाइम पे हमें अपनी जान बचाने की ज़्यादा ये रहती है और हम लोग एनिमल्स को भूल जाते हैं। तो एटलीस्ट आप एनिमल्स के जो हुक्स होते हैं वो ओपन कर सकते हैं, तो अपने आप को खुद को बचा सकते हैं। Be helpful. Next point is be helpful in relief and rescue work. बोले तेरी गलती है। Be helpful and relief in rescue work. Listen to the radio for accurate information. हमें रेडियो सुनना है accurate information के लिए। Do not take shelter under hoarding the or tree. I'm going to ask मैं किसी को भी पॉइंट पूछने वाली हूँ। साइक्लोन के प्रिकॉशंस बताओ, what is mean by cyclone, so pay attention. Do not take shelter under hoarding or trees. Trees के नीचे तो बिल्कुल नहीं रहना है, वो टाइम। Yes. Do not make phone calls. Stand up. I said stand here. Do not take shelter under hoarding or tree. Do not make phone call except call for help. Due to unnecessary calling, the network will disturb and rescue work also get disturbed. इफ हमें बहुत ज़रूरी होगा तो ही हम फ़ोन कॉल करेंगे वो टाइम, नहीं तो हमें फ़ोन कॉल नहीं करना चाहिए। गेट इट? अभी आप नीचे बैठो। नाउ लिसन, टेल मी वन बाय वन। आई एम गोइंग टू स्टैंड एवरी चिल्ड्रन। पूरे क्लास ही पता है क्योंकि बहुत सारे प्रिकॉशंस है। जैसे आपको जो भी याद आ रहा है वो प्रिकॉशंस आपको बताना है। बताओ वन बाय वन। टेल मी द प्रिकॉशंस ऑफ साइक्लोन। सबको एक एक बताना। हाँ, एक एक बता, ओनली वन। साइक्लोन को खड़ा नीचे कूद जाना है
करेक्ट, सिट डाउन। नेक्स्ट, यस, मैम हमको पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए और जब वो आए तो हम लोग को टेबल के नीचे रहना करेक्ट, मैम जब साइकिल आए तो हमको दरवाजा बंद रखना चाहिए, फिर हमारे घर में की अच्छी तरह रखनी चाहिए। करेक्ट। हाँ, ना साइक्लोन के पहले ना मतलब अगर हमारा मतलब हिल एरिया पे जाके अपने साथ फूड वाटर जो भी नेसेसरी चीज़ है ना वो सब ले लेना चाहिए। Correct. और मैम जब भी आए तो मैम ऐसे कोई कवर वाला जो एरिया हो जहाँ पे वो निकलना वहाँ से चले जाना चाहिए, मतलब ओके, करेक्ट। जैसे कि वो हाँ, यस। मैम मतलब पेड़ के नीचे खड़े होना खड़ा नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है फिर। Good job. ओके, मैम कितने सारे ए आप यू सिट प्रॉपर्ली ना, वहाँ पे टीचर है, पूरा पैर वहाँ पे करके। यस, तो बेंच के नीचे चढ़ेगा करेक्ट। जो से लाउडली, और ट्रेन का तो बेंच के नीचे छूटेगा। थोड़ा और I am not asking earthquake, I am asking about cyclone. साइक्लोन का चल रहा है ना कंटिन्यूस, वेट ना। Tell me. Same, some point are same in cyclone and earthquake. बताओ। ओके, आप खड़े रहो और सोचो तो, हाँ? यार साइक्लोन आया ना तब वो इलेक्ट्रिसिटी वो सब बंद करनी चाहिए, लाइट और ना वो क्या टीवी और रेडियो पे वो सुनना चाहिए, सही इंफॉर्मेशन। सही, accurate मेरे information. पास रेडियो पर मैंने रेडियो, ओनली रेडियो, और accurate बोलना है, you have to say accurate information. Yes. और 2-3 पॉइंट है जो किसी ने बताए नहीं। मैं बताऊँ लेट कंप्लीट द गर्ल्स आल्सो सम साइक्लोन आया तभी है ना हमको दरवाजे खिड़की बंद कर देनी चाहिए और घर में सेफ जगह पे जाना चाहिए, या फिर अगर हम कहीं बाहर हो ना तब फिर हमको पहले न्यूज़ सुननी चाहिए और फिर कोई साइक्लोन वाली जगह से दूर चले जाना। करेक्ट। पहले न्यूज़ सुन ए लेट मी लिसन। साइक्लोन आने वाला हो उस जगह पे अगर कोई भी एनिमल हो तो हमें उन्हें फ्री कर देना। वेरी गुड, करेक्ट। यस, हमारे पास करेक्ट। साइक्लोन आए तो हमको लिखना पड़ता है साइक्लोन आए। मैम ये ओपन कर रहा है she is hurting me, hurt me. She is hurting me. मैम वो भी हर्टिंग फॉर द करेक्ट, करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन है सुनामी। अब तो बिल्कुल नहीं था, यू डोंट नो। सुनामी, सुनामी का आपको प्रोनाउंसिएशन ऐसे करना है, डी साइलेंट है, ओके। द सुनामी इज catastrophic waves caused by an earthquake or volcanic eruptions at the bottom of the sea or oceans, or by large scale landslides in the oceans. Now tsunami is what? Is a catastrophic मतलब आपत्तिजनक, कभी भी आ सकता है, ऐसी वेव्स आती है समुद्र की, कारण होता है ना समुद्र की ऐसी वेव्स होती है। हाँ वही बता रही हूँ। Okay, no discussions. Let me explain first the point. We are learning about the tsunami. बेटा, sit down. Last bench.